ओके ठीक है ठीक। ओके 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 हाय, कौन है? तुम ही लोग हो? हेलो सर। गुड इवनिंग सर। ऋतिक रोशन भी है। ओके ओके ठीक है ओके। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ will I'll jot them. Okay, so this place is very nostalgic to me. Two reasons. One, of course, Farman is an old friend and who hardly treats me with biryani nowadays. Okay, so he was in IIMT Meerut and that was what, some 14-15 years back. 14-15 years back जब से मैं इनको जानता हूँ। और दूसरा, my wife was a professor here for 1.5 years. I think that's the other building. तो बीच में उनको लगा कि मैं लक्ष्मी का रूप छोड़ के सरस्वती के रूप में जाऊं, तो आई अलाउड फॉर 1.5 years, but then she came back to Lakshmi roop, which is helping us a lot. Okay, so my name is Amulya and I'm a proud Bihari. I come from a place called Patna. सुना है? नहीं सुना है? लगावे लू तू लिपस्टिक सुना है गाना? कब? पी के कि बिना पी के? Okay, so I studied there till 12th in a school called St. Michael's. Then I went to St. Xavier's, Calcutta. Anybody from Calcutta? Okay, so I went there, St. Xavier's. All my friends came to Delhi, but I went to Calcutta. क्योंकि मैं उस समय पापा का बात सुनता था, उन्होंने बोला कहीं नहीं जाओगे वहीं जाओ. So I went there, and my name to fame about St. Xavier's, Calcutta is that Ganguly is my batchmate, Saurav Ganguly. We studied together. He was in commerce, I was in political science. So I knew him, he didn't know me. Okay. It's a big college. Okay, from there, then I went to Xavier's College for my MBA. That was in Ranchi, 1996 to 1998. 98. And there I met Shalini, who's my wife. We were the first pair to start our relationship. पढ़ाई कम हुआ था शुरू में. Okay, फिर बाद में पढ़ा था. I was in the top 5 students there, and I was the first one to get placed in XISS Ranchi in HCL. I was the only one. Okay, and it has a history. So I lost my dad in 1997, and I am the only son, 3 sisters. Okay, so पहला lesson मेरे को वहीं से मिला था. I'll tell you once I am doing this. Okay, and from there, of course, I got a job in HCL where I worked for 10 years. So 5 years in India, 5 years abroad. So I was in Malaysia, Singapore, Australia for 5 years, and in between I got married. And the collateral damage, we came back. Okay, we didn't want to settle abroad, so that was our choice. Me and Shalini always wanted to be in India. Okay, and we came back, I think, in 2005. So 5 years I was there. So after that, I worked for Birlasoft, and last 8 years I worked for Samsung. And today I am working for a company called Team Computers. Okay, so it's only been what, 2 years that I have been working with them as CHRO. And next 2 years I'll work in corporate, and then I quit corporate. 2 साल के बाद मैं 25 साल कंप्लीट कर लूंगा कॉर्पोरेट में, और कॉर्पोरेट छोड़ दूंगा. फिर थोड़ा आराम करूंगा, कुछ बुक लिखूंगा, पढ़ाऊंगा. सिनेमा का भी स्क्रिप्ट लिखने का सोचा है, देखता हूं अगर हो जाए तो. कोई बिजनेस करने का जरूरत ही नहीं है, ज्ञान दूंगा. So that's what I want to do. Okay, I want to give it back to the society after 2 years. Me and my wife are very clear. I have a daughter who's 18, almost 18. She'll be 18 on 16th of October, and my son is in 9th standard. So 3.5 years will be free. Me and my wife, they'll go. ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना जिंदगी जिएंगे. So we want to go, move around, see India, see world, and then come back and think what we have to do. But I am good in lectures, I am good in training, so maybe I'll pick up that and I'll give it back to the society. So we were discussing कि भाई क्या करना है. So I told them there's a book called Die Empty. सुना है कभी? Die Empty. लिख लो. हाँ. Die Empty. वो जरूर पढ़ना. उसमें एक चीज बताया गया कि which is the richest place in the world. Richest place. Die empty. खाली हो के मरो. Die empty. Die empty. Which is the richest place in the world? Yes?
गल्फ, सिडनी, बताओ। कतर, और बताओ। कतर, हाँ। स्विट्जरलैंड। तो उस बुक में ना शुरू में बताया गया है कि द रिचेस्ट प्लेस ऑन दिस इज ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड, शमशान, जहां पे इतने लोग इतने सारे स्किल, इतने सारे नॉलेज लेके मर जाते हैं, देते नहीं। तो दैट्स द रिचेस्ट प्लेस। उस पे फिर वो कहानी है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट हाउ यू कैन डाई एम्प्टी while you traverse your journey on this mother earth. Okay, so just a roll call. Where are you all from? How many are you all from? Delhi, NCR? Okay, which all places? Jabalpur, okay, very good. Jaipur, Kannauj, Kashi, okay. Jhansi, okay. Jhansi is my mother-in-law's ancestral place, so I go to Jhansi. Munnar, Indore, wow. Ayodhya, कानपुरिया, ओके। सीतापुर का चॉकलेट खाए ना, बरेली, ओके, ग्रेट। हाउ मेनी इंजीनियर्स? ओके, रेस्ट ऑफ यू ऑल ग्रेजुएट, ओके। कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर वेयर यू स्टार्ट, इट ऑलवेज मैटर वेयर यू, ये याद रखना। इंजीनियर है, अच्छी बात है। तो कहाँ से इंजीनियरिंग किया? जयपुर, जीएलए, वेरी गुड। नीरज हमारे बहुत पुराने दोस्त, वहां पर देखे हो क्या मुझे? अच्छा, उनको देखा, ओके, कम, ओके। तो अभी आया तो ये बहुत टेंस बैठा हुआ था, मुझे लगा कुछ क्रिकेट खेलने वाला। आई प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड, हाँ। मुझे लगा कहीं मैच वैच तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि भाई आप मुस्कुराइए, आप यहाँ जयपुरिया, ओके। यू शुड नेवर रिग्रेट why you did not go to IMT or MDI or IAM and all those things. You are here because you are destined to be here. सबसे पहले तो दिमाग में घुसा लेना, और इसके बारे में कभी भी बैक बाइटिंग नहीं करना। जयपुरिया ऐसा था, जयपुरिया वैसा था। You had choice, but you came here, right? So you have to first think हम आ गए हैं, अब कुछ करके जाएंगे, right? So I was reading one article, उसमें उसने बताया, कहाँ है, इधर है, किधर है लैपटॉप? ऑन करो, हाँ, अच्छा अच्छा, अब हो गया, चल ही नहीं रहा है। चलो इससे करें, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ, लाओ। So there was this saying, you cannot face the problem when your face is the problem. समझे कुछ? समझे? हर एक स्लाइड में आपको कुछ मैं ज्ञान दूंगा। ये पूरी जो स्लाइड बनाई है ना, इसमें कुछ गेम्स का ज्ञान है, कुछ फिल्म का ज्ञान है, कुछ रेडियो सिटी का भी ज्ञान है, ओके, विच आई थिंक विल रिवर्बरेट इन योर माइंड फॉर लॉन्ग। तो ये याद जरूर रखना, यू कैन नॉट फेस द प्रॉब्लम इफ फेस इज द प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग के साथ ना कभी उनको लगता है अच्छा हुआ ही नहीं मेरे साथ जिंदगी में, उनको परेशान आत्मा बोलता हूँ मैं, पिए। वो कहीं से भी आएंगे ना, मुंह लटका के ही आएंगे, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। डोंट बिकम वन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। सेकंड, तो ये उल्टा जाता है। सेकंड इज दैट ऑलवेज रिवियर योर टीचर who will be teaching you. आपको लगता है कि वो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं मिला तो टीचिंग कर रहे हैं, बट दैट्स द नोबलेस्ट जॉब दैट एनीबॉडी कैन डू। प्लीज कभी भी टीचर को पैसे मत देखना कि भाई ये क्या है, ये कैसे पढ़ा रहे हैं। माय पेरेंट्स वर टीचर, एंड और भी आप लोग के साथ हो सकते हैं कि कोई टीचर है। तो whosoever is teaching you, please be blessed, that say thank you that they are there in your life.
So there's another book called Many Masters, Many Lives. Anybody's read it? Many Masters, Many Lives. आप लोग क्या पढ़ते हैं? फिल्म फेयर, सरिता, हैं? कुछ नहीं पढ़ते हैं। तब आप लोग मानी के मांगे हिते ही सुन रहे हैं क्या आजकल? आप लोग कुछ पढ़ते भी हो? वो तो बहुत पुराना है रॉबिन शर्मा। बस हाँ, किसने लिखा था? स्पेलिंग बताओ, कोहेलो का बताओ। देखो अगर पढ़ोगे नहीं ना, you will land up nowhere. The only way you can gather a lot of knowledge is through books. You have seen the result of the IAS officers this year. Who topped? Okay, after long years. But have you seen the background of the people? There's one guy who was selling, had an egg stall in Delhi. एक कोई यूनिवर्सिटी के सामने में अंडा बेचता था और रात में पढ़ता था, और सिर्फ पढ़ने की वजह से ही बिकम एन IAS स्टूडेंट। और आप लोग सब अच्छे अच्छे घर से आए हो, जहाँ पे आई थिंक पेरेंट्स आर डूइंग वेल एंड दे हैव स्पॉन्सर्ड यू टू कम एंड स्टडी हियर। द ओनली जॉब यू हैव टू डू इज टू, बट दैट आल्सो यू डोंट डू। अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम होगा आगे चल के। सो इम्पोर्टेंट इज दैट यू मस्ट रीड एटलीस्ट वन बुक एवरी मंथ। आपकी लाइब्रेरी भी होगी सर यहाँ पे। 2 साल ऐसे ही चला जाएगा। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो चला जाएगा, और करोगे भी तो जाएगा। लेकिन करोगे तो यू लैंड अप विद अ गुड जॉब, और एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गो इन द मार्केट एंड गेट अ गुड जॉब। ठीक है? एंड टीचर्स के साथ खिलवाड़ मत करना, मजाक मत उड़ाना, बिकॉज दैट विल ऑल कम बैक टू यू। कर्मा विल स्ट्राइक यू बैक। ये जरूर याद रखना, जो करोगे ना वो यहीं भरोगे। ऊपर में कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। तो एक बार एक आदमी मरा, गया ऊपर, तो भगवान ने उससे क्वेश्चन पूछा, सो सन हाउ वाज द हेवन? यही है सब। और वो सोच रहा था ऊपर रंभा संभा लेडी डायना ऊपर मिलेंगी, ऐसा कोई नहीं मिलता। और वो भी मरी थी ना, दिव्या भारती भी, जल्दी जिया खान, कोई नहीं मिलता। यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। Whatever deeds you do, you will get the benefit or whatever it is, or punishment. So keep that balance, keep it in your heart. Okay, so let's move on. मेरी ना कुछ learning है pandemic से, so let's share. If anybody wants to share, what has been your learning from pandemic? Last 1.5 years you've been closed, and of course on the mobile. At least mobile was the savior for all of us, right? नेट था, वाईफाई था, जिंदा रह गए। खाना भले ही 2 टाइम ना मिले, बट बैटरी फुल होना चाहिए। That's how millennials think. So there's some learnings from here. First, of course, is I started appreciating what I have in life. There are so many people who died. आप लोग के सोसाइटी में, आप लोग के मोहल्ले में, there will so many people, young, old, 20 साल, 25, 28, 32, मतलब every day morning में ना, I used to be scared opening the WhatsApp. RIP, RIP, Om Shanti, Om Shanti. Facebook was like full of it. But we survived. We survived. और घर में ही थे, तो हमारी यही थी appreciation की. I started appreciating family, friends, and health and life, which we normally neglect. और जितना यंग रहता है ना, उतना ज्यादा नेग्लेक्ट करता है। अभी सबसे बड़ा दुश्मन तो मम्मी पापा होते हैं। जब टीनेजर आप बनते हो ना, 13-14 में, सबसे बड़ा दुश्मन मम्मी पापा होते हैं। तो धीरे धीरे फिर आपको ख्याल आएगा, एंड देन फ्रेंड्स आप भूल गए थे, राइट? एंड देन यू रियलाइज बस हेल्थ इज समथिंग विच इज सो इम्पोर्टेंट। अगर उसको नहीं मैनेज करोगे, यू विल बी इन डीप शिट वेरी सून, very soon. The second learning for me was money is not everything. And why was that so? You saw on the TV, like people were running around with money in the bags, gunny bags, sacks, कि भैया मेरे को एक सीट दे दो, पैसे ले लो। एंड यहाँ पे जो अपना गुरुद्वारा है, वहां पे रोड पे लोग ऑक्सीजन बैठ के ले रहे थे, अच्छे अच्छे घर के, BMW में, मर्सिडीज में, साथ में पार्क करके ले रहे थे।
Then I realized was money is nothing in front of a good health and in the life that you have, spiritual life or whatever life that you say. The sooner you realize, the more contented your life will be. You will be much happier, much happier. And the finally was that I realized that before pandemic, we were living a life of excesses. क्यों excess? मॉल गए, जबरदस्ती कपड़ा खरीद लिया, एक और जूता खरीद लिया, कोई जरूरत नहीं है। मैं हमारे जमाने में और फरमान साहब के जमाने में हमें सिर्फ बर्थडे पे ही मिलता था और दिसंबर में एक ब्लैक जूता मिलता था बाटा का, जो कि स्कूल में भी पहनना होता था और ऐसे भी पहनना होता था। बट नाउ वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ एक्सेस बिकॉज वी हैव एक्सेस टू क्रेडिट कार्ड। आपको जो चीज नहीं चाहिए तब भी आप खरीद लोगे, पहनोगे नहीं, शायद कहीं लाके लगा दोगे, फिर पता चला रे यार ये तो इतना पहले खरीदा था, राइट? बट लुक एट पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल। मार्क जुकरबर्ग को देख लो, रिचर्ड ब्रांसन को देखो, कभी देखा है अरमानी के सूट पहन के घूमते हुए? मार्क जुकरबर्ग इज वेरी क्लियर, आई कैन नॉट वेस्ट टाइम ऑन ड्रेसिंग अप। उसका एक जीन्स है और टी है और वो एक ही कलर का है, जो घर में ऐसे ही लगा रहता है, उसने उठाया पहन लिया। मेरे बॉस भी वही है, 2 पेयर ऑफ जीन्स, 3 शर्ट और 2 जूता, उसी को बदल के पहनते रहते हैं। 2000 करोड़ का कंपनी चला रहे हैं। जब मैं शुरू में गया वो शॉक, ही सेड यार आई डोंट वेस्ट, व्हाई शुड आई वेस्ट, जब मेरे को ला के रखना है। बट वी मूव टू अ लाइफ ऑफ एसेंशियल। अभी हम लोग एसेंशियल्स में रहते हैं, ये जरूरत है ले लो, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी भी चली गई। उन्होंने ईएमआई ले ली थी, किसके लिए? घर के लिए, गाड़ी के लिए, हॉलीडे भी मनाए थे ईएमआई पे। प्रेशर आया होगा, बीवी ने दिया होगा, जब वाइसा वर्सी कि भैया दुबई चलिए, मालदीव्स चलिए, सब मालदीव्स ही जाते हैं बड़े लोग, ईएमआई पे सब मिलता है आजकल। एंड देन दे वर इन डीप ट्रबल। सो इफ you program your life which is made of essentials, you will be happier. You will save for the rainy day. अभी आप सेव करोगे, नौकरी चली भी जाएगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वन लेसन आई गॉट फ्रॉम माय फादर इन लॉ वाज, जब आप नौकरी कर रहे हो ना, तो 1 साल का जो खर्चा होता है ना आपका चलाने का घर, यू शुड हैव इट इन बैंक। अगर 50,000 है तो 6 लाख, 75,000 है तो 9 लाख, 1 लाख है तो 12 लाख। जितना जल्दी करके उसको फिक्स कर दो। तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हारे घर में कुछ हो सकता है जिसकी वजह से यू हैव टू टेक अ ब्रेक। कभी तुम्हारे पास ना फाइनेंशियल टेंशन नहीं रहे, रियलाइज दैट। फिर आप आराम से जाओगे, वापस आओगे, फिर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं रहा तो ना इधर के रहोगे ना इधर के। सो फोकस ऑन व्हाट यू हैव इन टर्म्स ऑफ एसेंशियल। ओके, द अदर लेसन दैट आई वांटेड टू गिव वाज दैट जब हम लोग बढ़ते हैं चाहे कुछ करते हैं ना, तो हमारी लाइफ होती है एक मिथ, एक होप, एक डिजायर में चलता है, ऐसा हो जाता, मुझे ये मिल जाता, हमेशा मिथ में रहते हैं। बट रियलिटी कुछ और होती है। तो 2 एग्जांपल्स मैं आपको वो समझाना चाहूंगा। थ्योरी इज मैन इज द हेड ऑफ द हाउस, बट रियलिटी इज यू नो व्हाट, राइट? लड़के सब समझ गए, होशियार हैं सर, होशियार। फीमेल पीपीटी, अच्छा यहाँ से, तो फिर यार तुम लोग कैसे, तुम लोग आगे चले जाओ ना, फिर मैं, आप लोग आगे सेट हो जाओ ना, इधर देखो मुझे, फिर तो उन लोग देख पाएगा ना। ओके ओके, यार आपने कैमरा इधर लगाना था, कैमरा तो इधर लगा देते ना, बढ़िया सा बड़ा सा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो द सेकंड थ्योरी वर्सेस रियलिटी इज, okay, the theory is that God will come to, but reality, so you know what is the reality, right? Okay, even worse. So my lesson here is that you have to grow up. You have to grow up now. You are in MBA, you are independent. अब आपको कोई बताने आने वाला नहीं है, and you cannot live a life which is full of myth and theory. ऐसा हो जाता, ऋतिक, शाहरुख, सलमान एक ही में मिल जाते मेरे हस्बैंड, और कटरीना, ये वो सब वाइफ में नहीं मिलता, नहीं मिलता। यू हैव टू ग्रो अप, स्टार्ट थिंकिंग बिग, स्टार्ट टेकिंग डिसीजन व्हिच विल इम्पैक्ट यू। अगर इसमें रहेंगे ना तो लाइफ में प्रॉब्लम। ओके, लेट्स मूव। So the first lesson in life, you have seen this ad, a beautiful ad.
ब्यूटीफुल आर्ट, बट कभी आपने सोचा इसमें लेसन क्या है? क्या लेसन है? जेंडर इक्वालिटी नहीं, और जाओ नीचे एकदम एकदम लो लेवल पे, लो लेवल पे ये पढ़ो, ये यू आर ऑल यूनिक, अलग हो, तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। वो गाना पढ़ो, कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में। ये बात याद रखना, यू आर डिफरेंट फ्रॉम हिम, यू आर डिफरेंट फ्रॉम हिम, डोंट कॉपी, यू आर बॉर्न ओरिजिनल, डाई ओरिजिनल, डोंट डाई अ कॉपी कैट। लेकिन लोग हमारे क्या करते हैं, उसकी कमीज जो है मेरे से सफेद है, तो वही लाइफ का बड़ा सबसे बड़ा डाइकोटमी है, सबसे बड़ा डाइकोटमी। When you start comparing, your comparison is nobody but you, and everybody is blessed. Everybody. कितनी लाख योनियां हैं हिंदू गॉड के माइथोलॉजी के अनुसार? 84-88 लाख योनि है, जिसमें एक ही योनि होता है मनुष्य का। तो आप सोच रहे हो कि मैं अगले जन्म में फिर आऊंगा करण अर्जुन टाइप का? नहीं आ सकते। You will not come. This is the only life as a human being. समझ गए जो आपको करना है? The important is what is common, what can you infer from those signatures that you have? They are different, they are not similar, so you have to create your own signature in life. और आज के डेट में ना इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, whatever you want to do you can do, whether it is online, becoming influencer, selling something, starting something on your own. India is the third largest in terms of the startups, right? After US, China, now it's become India. Every 2 months you will have 1 or 2 unicorns. 1 billion. अभी एक और यूनिकॉर्न आ गया, कॉइन कुबेर स्विच अभी आ गया है, हाँ कुबेर स्विच। तो एवरी 2 months पूरा लाइन लगा हुआ है इंडिया में, वेयर यू कैन बिकम अ यूनिकॉर्न। $1 billion, 7,000 करोड़। अगर आप लोगों में से कोई मिल के कर ले तो आप सोच लो कि आपकी 7 पूछते हैं 10 पूछते हैं आप आराम से कर सकते हैं। So think about that. Don't go into a traditional way of doing things, right? So you know this radio jockeys like Naved. How much does he earn? Any guess? नावेद को सुना है ना? हाँ, कितना गेस करो? उसकी मंथली सैलरी कितनी है? 15 लाख। 15 लाख मिलता है उसको, 15 लाख रुपए। अब आप सोच लो, वो कपिल शर्मा को देखा था, उसका क्या है पर एपिसोड? 1 करोड़ रुपीज पर एपिसोड। दैट्स द पावर, दैट्स द पावर। अभी यूएस में क्या चल रहा है? देयर वाज अ न्यूज दैट देयर इज अ गर्ल हु इज लाइक 35 years old. She's got some 10 crores, $1.5 million in her bank. She's retired. तो एक कॉन्सेप्ट है जो उसको बोलते हैं फायर, FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, FIRE। तो फायर लगा के रखो, 50-60 साल तक आप काम नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी टफ इन द कॉर्पोरेट, वेरी वेरी टफ। यू विल नॉट गेट मीनिंग आफ्टर सम टाइम। ओके, लेट्स मूव। ओके, सो यू टोल्ड मी दैट यू हैव टू टेल, दे हैव टू बी टोल्ड कि भाई आप जब काम करोगे चाहे कॉर्पोरेट में जाओगे, व्हाट एग्जैक्टली डू यू लर्न? सो पहला चीज है ना, यू हैव टू बी लाइक वाटर, पानी। पानी क्या करता है? फ्लो करता है, चाहे सैंड में बोलो, चाहे पत्थर में बोलो, चाहे पहाड़ों पे, चाहे फॉरेस्ट में। यू हैव टू बिकम लाइक वाटर, यू हैव टू ग्लाइड, कहीं पे रुकना नहीं, जरा इसके आगे मैं जाऊंगा नहीं। तो जब कॉर्पोरेट में रहते हो, चाहे आप यहाँ पर हो ना, यू हैव टू फाइंड योर वे वेयर पीपल कैन हेल्प यू। दैट्स द फर्स्ट लर्निंग यू हैव टू डिराइव आउट ऑफ दिस। जहां आप सोचोगे कि मैं एक पत्थर बन जाऊं या एक बड़ा सा पेड़, यू स्टॉप देयर और अपने साथ वो लेते चलो जो आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द ज्ञान। फर्स्ट 2 years, 3 years, 4 years, you have to be like water. Second is you have to be like a sponge. जितना ले सकते, ऑब्जर्व मतलब देखना, एब्जॉर्ब करते, ABSORB। ओके, तो आप अगर स्पंज नहीं हुए ना तो प्रॉब्लम होगा। You have to, whatever your boss is saying, your people are saying, you are seeing, visual, audio, you just take it, assimilate, right? Keep writing, keep writing, keep writing. See, today the problem is you have everything on internet. गूगल सर्च किया मिल जाएगा। हमारे समय में नहीं होता था, हमें मेहनत करना पड़ता। हमारे पापा लोग के जमाने में और नहीं होता था। Everything was in book. That is why when you compare people who did IIT in 70s, 80s versus IIT of now,
barring few who are actually exceptional in IQs and all, you will find everybody is average. कोटा जाते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, रख के घिस के, वो देखते ही आंसर बता देते हैं, and they pass. And when they go to IIT, people 35% है drop out rate, 35% from IIT after the first semester. 35% of people leave IIT. सोच लो, कर ही नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता. Right? So you have to just learn. Use your brain before you go to Google. क्योंकि गूगल में आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा. आपके असाइनमेंट भी मिलेंगे, पीपीटी भी मिलेगा. आपने ट्वीक करके आपने लिख देना है, बट उसमें क्या होगा, अपना ब्रेन नहीं यूज करोगे. इट्स यूजलेस, इट्स यूजलेस. ओके ओके. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. अगर डिसिप्लिन नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसमें नीरज चोपड़ा. देखा उसका वीडियो, देखा, एंड नाउ ही इज अ सेलिब्रिटी. Everybody is going after him for endorsement of product. विराट कोहली, धोनी, अमिताभ बच्चन को छोड़ दो, वो एक्सेप्शन, राइट? Because today's world, out of 10, 6 is Amitabh Bachchan. Only 4. He is 78 years old, यार, अमिताभ बच्चन. Look at the brand. Look at his discipline. अगर उस बंदे को 78 years में, if he is told to come at 8 o'clock, he is there at 8 o'clock. पूरा दिन भर शूटिंग करता है. पैंडेमिक में भी शूटिंग किया है. उसके लिवर में प्रॉब्लम है, उसके स्किन में प्रॉब्लम है, भगवान जाने कितना प्रॉब्लम है. खाना भी ठीक से नहीं खाता. बट आप देख लो, इंपॉर्टेंट है. अगर सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, यू विल बी अ लूजर. ओके. और यहां पर मैंने ना 92.7 का ये गाना लिया है. सुना है कभी तुम लोगों ने? सोनू निगम का गाया हुआ है, आप लोग देखिएगा. तो whenever I travel, I listen to 92.7 and this and that. So इसमें आप देखो कितना डीप सोच है अबाउट योर सेल्फ. कि अगर तुम नहीं बदले ना और जमाने को बदलने की कोशिश करोगे ना, कभी नहीं बदलेगा. यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट. बहुत जरूरी है. जब आप अपना अंतरात्मा को इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि यार मेरे में क्या गलती है, एंड देन एक्सेप्ट इट, सेइंग ओके आई एम लाइक दिस, बट आई विल कम ओवर इट आफ्टर 6 months और 1 year. देयर आर मेनी पीपल जो पुराने जमाने का IAS वाईएएस को देखोगे ना, वो लोग सब हिंदी मीडियम से पढ़े थे. बट अगर आज जाके मिलो, चाहे पहले 10-20 साल ना, दे हैव इम्पेकेबल इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर. जो हम लोग में अभी भी बच्चे जो कि कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, CBSE में और ICSE में, दे स्टिल डोंट हैव. Only because they knew that they had this flaw and they wanted to improve. So they started reading, listening to BBC, watching English programs, watching English movies. मेहनत कर रहे थे. प्रोएक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट है. आप ये कर लोगे, बहुत ही अच्छी बात है. ओके. अब ये कुछ मैं आप लोग को और भी बताऊंगा. जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कॉर्पोरेट हो चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल लाइफ, यू हैव टू रन योर ओन रेस. एंड इसमें मैं 2-3 स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें कुछ ज्ञान है, जिसमें मूवी के गाने जो कि बहुत इंपैक्टफुल है. जब आप जो गाना गाना जानते हैं वो गा लेंगे. तो जब आप चलेंगे, यू विल हैव लॉट ऑफ क्रिटिक्स जो आपको बार बार बोलेंगे कि भाई सक्सेसफुल, जितना सक्सेसफुल हो जाओगे उतना आपको खींचने के लिए होगा. यू डोंट हैव टू सी. अभी मैं आज एक फ्राइडे को, हर एक फ्राइडे को आई सेंड a Friday music or a story to my entire leadership in my company. तो आज का स्टोरी जो मैंने भेजा ना, एक फार्मर अपने कुत्ते के साथ जा रहा था वापस खेतों से होते हुए. आदमी घर पहुंच गया, कुत्ता नहीं पहुंचा. तो उसकी वाइफ ने बोला, यार ये कैसे हो गया, तुम पहले आ गए, कुत्ता क्यों नहीं आया? फिर थोड़ी देर के बाद कुत्ता आया हाँफते हुए. तो बोला, ये जो था ना, जैसे जैसे मैं चल रहा था तो उसको बीच में कुत्ते भौंकते मिल जाते. ये भाई साहब उनके पीछे चला जाता, फिर भगा के फिर वापस आया, फिर आगे चला, फिर एक कुत्ता भौंका, फिर उसके पीछे चला गया. फिर वो तो हुआ क्या कि मैं तो अपना फोकस था कि मुझे घर पहुंचना है और ये करना है, तो मैं पहले आ गया. और ये भाई साहब, तो जब आप अपने राहों पे चलोगे, यू विल हैव पीपल हु विल डिस्ट्रैक्ट यू. ओके. यू डोंट हैव टू लुक एट दैट डिस्ट्रैक्शन, यू हैव टू सी वेयर यू आर गोइंग और आपको पहुंचना कहां है. व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. एनालिटिक्स करना है, MBA कर रहे हैं, MBA करने के बाद क्या नौकरी करोगे, सेल्स करोगे, मार्केटिंग करोगे, किस में जाओगे, फील्ड सेल्स में जाओगे, बैक एंड सेल्स में जाओगे, ISR करोगे, इनसाइड सेल्स करोगे, क्या करोगे. HR में हो तो HR में क्या करोगे. हाउ मेनी आर गोइंग टू टेक HR? एनीबॉडी? ओनली वन. रेस्ट ऑफ यू? हाँ. सो मार्केटिंग के भी ढेर सारे
होते हैं। अभी आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग इज ऑन दी अप, digital marketing, social media marketing, and only millennials understand it. Okay, you tell a lot of people, lot of leaders, Instagram, they don't know how to run Instagram because every business is happening on Instagram. Everything is happening on Facebook and all the what do you say online .coms that you have. So अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप कभी नहीं कर सकते, right? So read about it. Okay. The second is nothing is personal. When you are working in a corporate, nothing is personal. It's all प्रोफेशनल. इफ एनीबडी हिट्स यू हार्ड बिलो द बेल्ट, कभी हो जाता है कि पर्सनल ले लिया, बट नथिंग इज पर्सनल. सो यू हैव टू नो दिस एंड कीप दिस सॉन्ग इन योर माइंड. एक तो जब काम करते हो ना टेंशन मत लो. कोई आएगा लड़का बोल के चला जाएगा और आप स्ट्रेस हो जाओगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा लोगे. डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप. देयर विल बी पीपल हु विल डू इट विद यू. अगर आपकी कमजोरी पता चल गया ना, they come back again and again and do that to you, right? So when you go inside the organization, switch on that you are in the organization. थोड़ा पर्सनल लाइफ को अलग रखो, प्रोफेशनल में घुस जाओ. 6 बजे निकलोगे ना, ऑफ कर देना ऑफिस और वापस आ जाना अपनी दुनिया में. And whatever you like, you want to play badminton, you want to play cricket, you want to play golf, do that. Okay. तीसरा है कोलैबोरेशन इज की. अगर आप सोचोगे कि मैं अकेले कुछ कर लूं तो आप नहीं कर सकते. यू विल नॉट बी एबल टू डू. द होल वर्ल्ड इज वन विलेज नाउ ग्लोबली. आज के जमाने में जब से पैंडेमिक हुआ है ना, सारे लोग अपने अपने घर जाके बैठ गए. जितना भी छोटा गांव सोच सकते हो सोच लो. सबके पास जियो है, दे आर कनेक्टेड. दे डोंट वांट टू कम नाउ. दे डोंट वांट टू कम टू बिग सिटीज. अब आजकल क्या बोलते हैं, अगर आप उससे पूछोगे आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विल इट बी full time work from home. That's a new trend. कि नहीं जाना चाहिए मुझे, मेरे को मिल जाएगा जॉब. 20,000 कम ही मिलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं घर पे तो हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ तो हूँ. बट क्या हो रहा है कि ऑनलाइन यू हैव टू कोलैबोरेट. यू हैव कोलैबोरेशन टूल. वर्क प्लेस है, कितने सारे आपको वो मिल जाएंगे क्लाउड बेस कि आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो कहीं नैनीताल से, कहीं बनारस से, एंड यू आर पुटिंग एवरीथिंग. कोडिंग इज हैपनिंग. जापान स्टार्ट करता है और साउथ अमेरिका फिनिश करता है उसको, बट 24 आवर्स इट्स हैपनिंग. ओके. तो यहाँ पे गाना है ये. समझ गए? राइट. ये सब गाने जो है ना याद करना. ये दिस विल हेल्प यू इन योर लाइफ एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर. If you sing, nothing like it. If you don't sing, if you listen, no problem. Okay? So now I'll go to games. How many people play chess? Fantastic. So after looking at this, do you have any inference to say कि भाई chess से क्या सीखते हो? Okay? Patience और strategy. फ्रंट फुट पे रहना हमेशा और स्मार्ट मूव और ओके. आप बताएं स्ट्रैटेजी. ठीक है. अब इसको मैं थोड़ी जिंदगी से कनेक्ट कर देता हूं. इसमें ना बड़े सारे कैरेक्टर्स हैं. नहीं कैरेक्टर्स अलग अलग हैं गेम में. राजा है, रानी है, मंत्री है, घोड़ा है और हाथी है और सिपाही है. और सबकी चालें अलग अलग होती है. राइट. तो जीतने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि सीधे ही चलना होता है. और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जीतने के लिए कभी कभी पीछे भी आना पड़ता है. तो घोड़ा चलते भी हो लेकिन पीछे आते हो, मंत्री को इधर भी ले आते हो लेकिन पीछे भी आते हो. तो और दूसरा है कि कभी कभी सिपाही भी राजा को मार देता है. रिमेंबर दैट व्हेन यू ग्रो एंड गो अप इन योर लैडर ना लाइफ के, तो आप कभी कभी जब सब आपके पास आ जाता है एंड यू बिकम वाइस प्रेसिडेंट एंड यू स्टार्ट अर्निंग, यू हैव अ BMW एंड ऑल द थिंग, यू फॉरगेट द पीपल हु हेल्प यू टू कम अप टू दैट. क्योंकि वहां पे वो सब लोग मिलेंगे, द जैनिटर्स, द रिसेप्शनिस्ट एंड देयर विल बी पीपल इन लीगल हु हैव नॉट डन वेल बट दे हेल्प यू. बट हम भूल जाते हैं. बट कभी कभी लाइफ पटक भी देती है बहुत बुरी तरह. सांप सीढ़ी होता है लाइफ. 99 पे जो काटता है ना वो सीधा 7 पे आता है. 7 ही पे आता है ना, 6 पे आता है. 6 पे आता है, 6 या 9 पे आता है. राइट.
तो ये बात याद रखिएगा कि जीत जाइएगा। और वो जब लूडो खेलते हैं ना, तो घर जाने के लिए जो 2 चाहिए होता, आता नहीं कभी। तो लाइफ ना बहुत सिंपल है, आपके आसपास ही होता है सीखने के लिए। तो इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि स्ट्रैटेजी सब अलग है। ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक का अपना अपना रोल होता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल हो। और जीतने के लिए हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक तरफ ही चले, आप आड़ा तिरछा। एंड एवरीबडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ऑल योर मेंटर्स, योर फ्रेंड्स, योर parents, your guardians, they are very important to you. Okay, the second game is this. Everybody has played it. Any guess? What do you learn? What do you learn? Some things are out of control. ज्यादा नंबर बार बार नहीं आता है। Very good. So this is what I want to tell you. Life is like a dice. You will never know what will come next. 3 बार 6 आ जाता है तब भी आउट हो जाते हो, राइट? अब आपको चाहिए होता है 2, लेकिन 2 कभी आता नहीं। तो अगर आप ये सोचोगे कि यार ये होगा मेरे साथ, वो नहीं होता, ये नहीं होता। सो प्लीज प्रिपेयर। और कभी भी ना सैड थिंग और हैप्पीनेस एक साथ नहीं रहता, एवरीथिंग विल कम एंड गो। तो एक बार अकबर और बीरबल बैठे हुए थे, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, यार एक सेंटेंस ऐसा बताओ जिसको सुन के खुशी भी हो और दुख भी। दिस टू शैल पास, ये वक्त गुजर जाएगा, ये लिख लेना। ये काम करते हो ना, तो होगा कभी तुम्हारी लाइफ में प्रमोशन नहीं मिलेगा, तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, बट ऐसा कुछ घबराने की कोई बात नहीं। इंक्रीमेंट नहीं मिला तो मे बी देयर इज समथिंग बिग कमिंग फॉर यू, मे बी देयर इज अ जॉब व्हिच इज कमिंग फॉर यू व्हिच कैन गिव यू 100% जंप, और तुम यहाँ पे 5% के लिए रो रहे हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता लाइफ में। ओके ओके, नाउ लेट्स गो टू सम मोर स्पोर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन चाहे पर्सनल लाइफ में एक बार याद रखना, स्पीड डजंट विन रेस, व्हाट विंस इज स्टार्टिंग फर्स्ट। स्टार्टिंग फर्स्ट में ही होता है। 31 दिसंबर को सबसे बड़ा रेजोल्यूशन, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेजोल्यूशन किस बात का होता है? तुम भी करती हो, होता है। मतलब सबसे बड़ा तो वेट लूज का होता है, इस साल है ना, मगर कोई स्टार्ट करता नहीं, जाता है गोल्ड जिम का ले लेता है, कोई कहीं ले लेता है, उसके बाद सेल्फी वेल्फी करके इंस्टा में फेसबुक में लाइक ओ यू आर लुकिंग सो ग्रेट दिस दैट, बस चौथा दिन में खत्म। तो अगर आप कुछ भी चीज सोच रहे हो दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, स्टार्ट व्हाटएवर इट इज। इफ यू वांट टू लूज वेट, just go for a 500-meter walk or a 1 kilometer walk, it is fine. जो लोग जो मैराथन वगैरह दौड़ते हैं ना, वो कभी 20 किलोमीटर एक साथ नहीं दौड़ते। They start like 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 40 जाते हैं। अगर आप नहीं स्टार्ट करोगे, आपके पास 2 साल है। If you have looked at yourself, what is your weakness, what are your strengths? Believe you me, in these 2 years, you can cover all those things, everything. You will be a much different person when you go out of it. But you have to start. If you don't understand, if you want to take help of your teachers, anybody wants to connect with me, I am fine. I can guide you. We can have hangout, we can have on Zoom. I can guide you for 15 minutes or half an hour. You get stuck, talk to me. Okay? But stuck मत हो, आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। Okay? Okay. And whatever you plan, you should have plan A, plan B, plan C. अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना है। बाहर में पार्टी कर रहे हैं, बरसात हो सकता है तो अंदर जाएंगे, प्लान बी हुआ। अंदर में बहुत भीड़ हो जाएगा तो क्या करेंगे? अंडरस्टूड? यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग लाइक दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जा रही हूँ मार्केटिंग में, अगर मार्केटिंग में जॉब नहीं मिला, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट आई कैन डू? What is the next best? Because you don't know how many companies will come here who will take you for digital marketing. And if you're thinking that yes, they'll come, then you're living in a fool's paradise. Better you prepare. और लाइफ का सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, जब प्रिपेयर करते हो ना तो क्वेश्चन हल्के आते हैं, नहीं पढ़ोगे तो टफ आते। बट हमारी आदत क्या होती है, 10 में से 4 पढ़ लो, 5 साल का ट्रेंड देख लो। अगर 10 पढ़ लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर 10 पढ़ लिए, who will be the gainer?
not the teacher. You, because you will learn more concepts, right? So you do that plan for yourself. Okay. What do you understand from this picture? Chalo, okay. Path. Okay. Engineers, if you can think about it. Displacement. Okay. हाँ, ओके. और कुछ देखो, मेरे बॉस का ये ज्ञान है. वो बोलते हैं द साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज टू सिंप्लीफाई. ठीक है, ये क्यों नहीं जा रहा है? सिंप्लीफाई. कोई चीज को कॉम्प्लेक्स बना के किसी को पेश करोगे ना तो फंस जाओगे. तो एक बंदा था, जब नया नया क्लाउड टेक्नोलॉजीज आया था ना, तो उससे पूछते थे कि यार ये कुछ समझा दो, तुम्हें नहीं समझ में आया, बहुत टफ है. मगर जाके क्लाउड 5 मिनट में आप समझ सकते हो कि क्लाउड है क्या. मगर वो हमेशा यही, सर आपको नहीं समझ में आया, बहुत टफ है, नया टेक्नोलॉजी है. कुछ ऐसा नहीं. अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप अच्छा स्टूडेंट हो, आप अच्छा बॉस बनोगे, यू हैव टू सिंप्लीफाई थिंग. कॉम्प्लेक्स करके नहीं बताना आपने, ऐसा वैसा. उसी तरह जब आप आंसर भी यहाँ पे दोगे किसी भी चीज का ना, यू हैव टू सिंप्लीफाई एंड एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट दैट यू स्टडी एंड गिव एग्जांपल्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Okay. So when you are in corporate world, these are the 3 things which I have followed to be successful and get promotions and new roles every time. There are 3 things. तो मार्केटिंग में आप 5P पढ़ोगे, बट मेरे लिए 3 P रहा है हमेशा से. The first one was performance. आप you cannot let go of performance anytime. आपको perform करना पड़ेगा 100% every time. The second is what is your potential? Where, how far can you go? And the third very important thing is perception. What is the perception people carry about you? अगर आप जाओगे, आपके साथ 4-5 और MTs होंगे, कोई भी कंपनी में XYZ, Unilever, okay, and you start growing, and after 5 years they say, boss, I have 2 posts for the next grade, okay, and all 5 of you are from MBA, काम अच्छा कर रहे हो, परफॉर्मेंस भी है, पोटेंशियल भी है, और किसको मिलेगा वो 2? जिसके बारे में मैनेजर और लीडर्स का परसेप्शन है यार ये कर लेगा, एंड दैट इज द गेम चेंजर. तो अगर वो आप परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं किए हो कि लोगों को लगता है कि इसको कुछ भी दे दो कर देगा, देन यू विल नॉट गेट बेनिफिट. सो प्लीज रिमेंबर दैट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन परफॉर्मेंस, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन potential, and of course you have to manage perception. Okay, last 2-3 slides before you get bored. This is a mindset photograph. Mindset. What do you understand from this? Drought, and that is green. So in management we call it as scarcity and abundance. And abundance. So there are people who will always think negative. इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता. किसी ने सोचा था कि एडुकेशन ऑनलाइन बायजूस $16 billion, किसी ने सोचा था? He thought $16 billion is the evaluation, 16 into 7,000 crores. And जितने भी अभी एडुकेशन में है ना, एडुटेक में, they are doing wonderfully well. Only because he thought there is a chance. And he thought there is an abundance. I can go and I can learn. And in life also you will get opportunities जहाँ पर लगेगा यार मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से क्यों? But that is where you have to take a call. बस हो गया. Let me go to the ocean which is blue. वहाँ पे कोई competition ही नहीं. जाओ वहाँ पे आराम से करो. But if your mindset is that of scarcity कि यार ये होगा ही नहीं, मैं इतना ही कर सकता हूँ, then you don't know your potential. तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं 60% पे खेलूंगा, मेरे को तो 80 कभी आएगा नहीं, आपको 60 ही आएगा. 59, 58, 60, 60.5, 60.4. You will never get 70 or 80. But once you start thinking, yes, I can top, I can be in top 5. This is my favorite subject. I have to get a job in the first 2 campuses that will come here. You will get it. You only have to believe कि भैया abundance है मेरे दिमाग में, right? And when you are working, of course, you will fail, and you failed also. And everybody says, whether it was Steve Jobs, you have to fail forward.
एंड दिस इज अ सॉन्ग व्हिच इज वेरी फेवरेट टू मी। ये इम्तिहान पिक्चर का गाना है जिसमें विनोद खन्ना था, रुक जाना नहीं तू कहीं हाथ। अगर आप सोचोगे कि बैठे बैठे मेरे सर पे एप्पल गिर जाए, उसके लिए भी आइंस्टाइन को जाना पड़ा था ना एप्पल के पेड़ के नीचे। अगर वो अमरूद के नीचे बैठा रहता है, कोई कटहल के नीचे बैठा है तो वो मिलता, और एटलीस्ट ही हैड टू वॉक टू दैट। और उससे पहले बहुत लोग बैठे भी थे वहां पे उस एप्पल के नीचे, पेड़ के नीचे, और एप्पल गिरा भी था। एडिसन ने कितना बार फेल किया था बल्ब बनाने से? 10,000 टाइम्स, बट स्टिल ही मेड। And then they asked how many times. He said, I know 10,000 times how not to make a bulb. So अगर आप ये सोचोगे कि मैं हमेशा सक्सेसफुल रहूंगा, then you are living in somebody, वो आप खुश फहमी में। विराट कोहली की हालत देख ली अभी, देख ली है ना हालत। अमिताभ बच्चन एक बार तो खत्म हो गए थे जब वो पॉलिटिक्स में और अमर सिंह के चक्कर में पड़ गए थे। ABCL खोला था, 300 करोड़ लगा दिया था, and he was fight, but then he came back only because he believed, and now you see amazing लाइफ जो है ना पटकती है और बुरी तरह पटकती है, but that doesn't mean you are finished, you have to start, right? So that is important. And last, I think this is the penultimate slide. This guy is from Egypt, yeah, and he was in the Paralympics, silver कुछ मिला था, no hands, and he was playing. तो मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, कॉल्ड द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो उसमें बोला था कि भाई देखो, दिस गाय डजंट हैव एक्सक्यूजेस इन लाइफ। हम लोग को ये बीमारी होती है, एक्सक्यूसाइटिस बोलते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, उसी तरह एक्सक्यूसाइटिस होता है। एक्सक्यूज देने की आदत हो जाती है कि यार आज ठीक नहीं है तबीयत, आज मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? बट look at the efforts all these para Olympians made. 19 medals, 19, 2 gold, 6 silver, and 11 I think bronze. And the ones who had full 2 legs and 2 hands, we only won what, 6 or 7, right? So if he can do, you can also do. Don't give excuse कि मैं तो जयपुरिया में पढ़ रही हूँ, मैं वहां पे नहीं जा पाई। You are here, and believe you me, you are blessed. Because I'm 100% sure 600 people would have applied and only you would have got selected, and maybe 2,000 people would have given the test. So whatever is there, make the best out of this institute, okay? And then of course, चेहरे देखा कोई पिक्चर? अभी पिक्चर देखा चेहरे अमिताभ बच्चन का? An amazing poem. So I picked up lately, this is the latest, कि आप चले तो जाओगे बस सिर्फ चेहरा रह जाता है। आप वाइस प्रेसिडेंट थे, CHRO थे, आप ये थे, वो थे, कुछ याद नहीं रहता, किसी को कुछ याद नहीं रहता। इट्स ओनली यू एंड योर फेस एंड योर डीड्स विच आर देयर इन दिस वर्ल्ड। तो आप सोचोगे कि मैं किसी के ऊपर चल जाऊं कुचल के और ऐसे निकल जाऊं, तो बस यही बोलेगा अच्छा हुआ मर गया। और जितना आपने जिंदगी में काम किया होगा ना, इट विल बी ऑल वाइप्ड आउट, इट विल ऑल बिकम जीरो, राइट? सो यू आर एक्चुअली इन अ जोन। पैंडेमिक खत्म हो गया है, पैंडेमिक हर एक 100 साल के बाद आता है, हो सकता है नेक्स्ट पैंडेमिक 50 साल के बाद आए, चाहे 25 साल के बाद आए, तब तक आप लोग काम कर चुके होंगे, कुछ लोग रिटायर कर चुके होंगे, कुछ लोग कुछ अपना स्टार्ट कर लिए होंगे। सो यू आर इन अ ग्रेट जोन, एटलीस्ट यू आर स्टार्टिंग। Now people have wasted 1.5 years, 2 years in the pandemic staying at home, right? People who have taken वहाँ फॉरेन में एडमिशन ले लिया, घर से पढ़े 70 लाख दे के, 80 लाख दे के, at least you are all vaccinated also, right? Fantastic. So make the best. आपको पता है what you have missed in last 1.5 years. Don't waste it. Okay, use it profoundly and use your wisdom, and you will always do well. So with that, I will say the very best wishes to all of you. Anytime you want to connect with me, you can take help of Farman sir, and I loved coming here and speaking to you. All the very best. Thank you so much. Any questions? Thank you, sir. Any questions? You have any questions? You want to go home? I am also in a hurry to go home. हाँ. Anyone want to ask any question? 1 घंटा में खत्म हो गया, ठीक है? And online participant, anyone of you want to ask any question? So you can ask. पूछ लो अभी,
I am here, huh? Any questions? No questions means either you have understood or it was a bouncer. Okay. So thank you so very much and God bless you. Okay. Yeah. Sorry. टेबल पे उसका रैकेट तो मुंह पे था. हाँ, लेग से बॉल फेंकता था और खेलता था मुंह से. जो सर्विस था ना, he used to toss it with the leg and play with the mouth. And he was in the he won 2-3 matches or some medal also. So you can understand, silver medal without any arms. And there were people who were like with no legs or arms. They did that. Okay. Okay, guys. All the very best. Thank you, sir, Thank you so for very much. Take care. thank you, sir, for giving your valuable thoughts and experiences. Bye. And I hope all of us have benefited from this session. Thank you so much, sir, for giving Thank your you. precious time. Thank you, Chali. Thank you.